has been like an extension of my coming or getting deep and deeper into Rotary, Lions and other organizations. So with an attitude of gratitude, I salute my people and especially the Rotarians and Rotary Club. Over here I would like to thank my very dear friend, favorite, younger brother, and who gave me the maximum support from Pandeyeshwar. I'm talking about Naren Babu, উনি বসে আছেন এইখানে, সন্দীপ বাবু, সন্দীপ এত ভালো করে উনি কন্ডাক্ট করেছেন, তারপরে ওনাদের ব্রাদার বাপ্পি দা, আগে লাস্ট টাইম আমি পাপি বলেছিলাম, পাপি নয় বাপ্পি, বাপ্পি দা, মানে বিশ্বদীপ দে, সুখেন্দ্র বাবু আপনাকেও আমি জানাচ্ছি, আরো রাজাজি উনি হায়দ্রাবাদ থেকে স্পেশালি এসেছেন আজকে, কালকে সকালে আবার हैदराबाद फिरे जाते एंड राजा एंड ऑल हिज प्रजा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा आपने कहा और बहुत इंस्पायर किया आपने, राजीव जी का जिक्र किया, मैं राजीव जी को भी बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, शुभेच्छा जनाता हूं। एंड ऑफ कोर्स तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, कोबी दत्ता जी बैठे हैं, उनका बहुत आश्वासन भी मिला, सपोर्ट मिला, देख के गजब लगता है कि रोटरी क्लब में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं और कितने कमिटेड लोग हैं, वंडरफुल। मैं डॉक्टर गांगुली का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। डॉक्टर गांगुली नॉट ओनली seems to be a very good doctor, but he is a very popular doctor and very social and seems to be a very noble person. The kind of support he has given, highly admirable, highly appreciable. And Dr. Ganguly, I have been the health minister of the country. I'll come to that point later on. But I've had the opportunity to meet the best of the professionals, the best of the doctors in the country and abroad. But I would say today, after listening to you, after knowing you a little more through your personality in totality or through your speech, I would say Dr. Ganguly certainly seems to be a role model among doctors. Fantastic. I just said that I have been the health minister of this country. I also pay my salute with an attitude of gratitude. I salute all the Rotarians over here and of course members of the other organizations like Lions and other organizations. I'm very happy. I have especially come for this program because this is the program which is very dear to me. In fact, health issues are very dear to me. I said I have been the health minister of this country, but before that I must give you a little bit of introduction about me and myself and my so-called achievements in life. I come from a family, we are 4 brothers, Ram, Lakhan, Bharat and Shatrugna. That is why my house in Mumbai is known as Ramayan. We are 4 brothers, Ram, Lakhan, Bharat, Shatrugna. And Dr. Ram Sinha, Dr. Lakhan Sinha, Dr. Bharat Sinha. मैं तो कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, तो मैं डॉक्टर तो बन नहीं सका डिस्पाइट ऑल देयर सिंसियरिटी एंड एफर्ट्स। पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश की कि डॉक्टर बनाओ इसको, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि 2 बेटा टॉप का साइंटिस्ट बने और 2 बेटा डॉक्टर बने। मेरे फादर खुद डॉक्टर गांगुली अमेरिका से उन्होंने BSc MSc किया था और जब मैं बच्चा था तो मुझे मालूम है कि वो पानी के जहाज से अमेरिका गए थे, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी, और पानी के जहाज से वो लौट कर आए थे। यानी 30 दिन से ज्यादा लगा था अमेरिका जाने में उनको, और आने में भी 30 दिन लगा होगा। लेकिन उसके बावजूद उनकी ख्वाहिश थी कि हमारा 2 बेटा टॉप का साइंटिस्ट बने और 2 बेटा बहुत अच्छा डॉक्टर बने। अब 2 बेटे तो साइंटिस्ट बन गए,
डॉक्टर राम सिन्हा आज भी अमेरिका में जो स्पेस साइंटिस्ट नासा वगैरह सबसे जुड़े रहे। डॉक्टर लखन सिन्हा भी 18 साल अमेरिका रहे, एविएशन साइंटिस्ट, वो भी हिंदुस्तान में भी वापस आए कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले। डॉक्टर भरत सिन्हा आज भी लंदन में डॉक्टर हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं तो कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था। पेरेंट्स को हमेशा और लायंस को, रोटरी को, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को बताना चाहिए कि बच्चों का भविष्य आप डिसाइड मत कीजिए, बच्चों को सपोर्ट दीजिए, बच्चों को आगे बढ़ने दीजिए। बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश मत कीजिए, और डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको पोएट बनाने की कोशिश मत कीजिए। उसके एप्टीट्यूड पे जाइए, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी रुचि क्या है, वो क्या कर सकता है, किसके काबिल है, उस पे जाओ आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। पेरेंट्स में होता है। बाद में मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझ पर फख्र किया, लेकिन उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब मैं अल्टीमेटली पटना साइंस कॉलेज से FTII में चला गया, वहां सिलेक्शन हो गया। उनको बहुत तकलीफ हुई कि FTI की ट्रेनिंग क्या होती है, एक्टर बनने जा रहे हैं, क्या बनेगा, भांड बनेगा, जोकर बनेगा, क्या बनेगा, अमेरिका के पढ़े हुए। ऐसा था। बाद में बहुत मुझ पर नाज किया, फख्र किया बाद में, लेकिन उनको तकलीफ हुई यार, बीइंग द यंगेस्ट सन। तो खैर, आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुझे कहा गया कि साहब ये किसी काबिल नहीं। तो मैं फिर वहां पे बड़ी कोशिश की, मेडिकल कॉलेज में कोशिश की गई मेरे बारे में, आयुर्वेदिक कॉलेज में कोशिश की गई, होम्योपैथिक कॉलेज में कोशिश की गई। काबिल हूं तब तो जाऊंगा, उसमें किसी काबिल ही नहीं था। तो कहां से? लोग कहते थे कोई और बेटा हो तो ले आइए, बेटे तो 4 ही थे, ये बेटे को नहीं। और ऐसे भी कॉलेज में रेपुटेशन मेरा बहुत अच्छा तो था नहीं। हमेशा क्लासरूम में कम और नोटिस बोर्ड पे ज्यादा आता था, और नोटिस बोर्ड पे इतना आता था डॉक्टर गांगुली कि आज भी मुझको याद है। और बाय द वे, मैं पटना साइंस कॉलेज से ज्यादा पॉपुलर में पटना मेडिकल कॉलेज में था, प्रिंस ऑफ वेल्स पटना मेडिकल कॉलेज, वहां ज्यादा रहता था, वहां ज्यादा क्लास करता था। लेकिन वहां पे कितनी बार मेरा नोटिस बोर्ड पे नाम निकला कि मुझे आज भी याद है नोटिस बोर्ड पे मेरे बारे में क्या छपता था। मिस्टर शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, रोल नंबर 210 of BSc, has been fined ₹25 for his misconduct, and he has been warned that any such reputation will mean his removal from this college. Copy forwarded to all head of departments and the notice board of the Girls Common Room. Signed NS Nagendranath, Principal Patna Science College, Patna Sindh. खुशी यही थी कि मेरे चर्चे जो है गर्ल्स कॉमन रूम में होते थे, भाई यही तसल्ली थी और कोई तसल्ली नहीं थी। अब ये आलम था वहां पे कि वैसे लड़के को कैसे डॉक्टर बनाया जाए। ये बात अलग है कि 2 बेटे साइंटिस्ट बन गए, तीसरा बेटा डॉक्टर बन गया, चौथा बेटा कंपाउंडर बनने लायक नहीं था, लेकिन एक दिन देश का हेल्थ मिनिस्टर बन गया। ये होता है कभी कभी डेमोक्रेसी में, ऐसा होता है जो किसी काबिल नहीं होता है वो देश में मंत्री बन जाता है, हेल्थ मिनिस्टर बन जाता है, और शायद मैं भी उन्हीं में से एक था। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद, सीरियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद बहुत ही पढ़ना शुरू किया। काश अगर इतना मैंने कॉलेज में पढ़ाई की होती, यहां जब मेडिकल कॉलेज जाता था वहां इतना पढ़ता, तो शायद मैं डॉक्टर बन गया होता, लेकिन फिर पॉलिटिक्स में नहीं होता और हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनता। इतनी पढ़ाई शुरू की, और ऐसी पढ़ाई शुरू की कि जब हेल्थ मिनिस्टर बना तो मुझसे सबसे पहला सवाल किया गया था कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री एंड व्हाट आर द प्रायोरिटीज। एंड डॉक्टर गांगुली, माय आंसर वाज देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री। पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, but there are only 2 priorities. One is education and other is health. Health and education. ये दोनों priorities हैं। Health of the nation is wealth of the nation.
वही देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा तंदुरुस्त, सबसे ज्यादा चुस्त और दुरुस्त माना जाएगा, जहां जिस देश की जवानी जो है बहुत जबरदस्त हो, शक्तिशाली हो, वही देश आर्थिक उन्नति सबसे ज्यादा करेगा, जिसका यंगर जनरेशन, जहां के लोग बहुत मजबूत हो, दृढ़ हो, जिनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत हो, जिनके अंदर कमाने की ताकत उनके हेल्थ की वजह से बहुत अच्छी हो। ये हेल्थ ऑफ द नेशन इज वेल्थ ऑफ द नेशन। और मैं इसको प्रैक्टिस करता गया। मैं रोटरी का और लायंस का जिक्र किया था। हमारे बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत बड़े भाई समान थे, कांग्रेस पार्टी में थे, सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त साहब ने हमको बहुत इंस्पायर किया था रोटरी और लायंस के मामले में, और मैं 2-4 कैंपेन करता गया, जो आज भी करता हूं। से नो टू ड्रग्स एंड एंटी टोबैको कैंपेन। ये मैंने एंटी टोबैको कैंपेन इतना करता रहा हूं पूरे देश विदेश में। से नो टू ड्रग्स ऑल्सो, कि ये बहुत ही घातक है, सिर्फ शरीर के लिए नहीं, इंसान के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए सबसे घातक जो है, सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो है टोबैको का सेवन या ड्रग्स का सेवन। जो ड्रग लेते हैं, निकलना बहुत भारी। লোড নিতে পারছে না, লোড কমিয়ে দাও, ফ্যানগুলো বন্ধ করে দাও। দুবার